اپنی عبادت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے، نیک کام کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، غرور کس بات کا ہے؟ اور جب بندہ عبادت پر غرور کرتا ہے وہیں سے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت کم عبادت کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ عزیز ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی بہت زیادہ تقوی والا، دکھاوے میں نمازیں پڑھنے والا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مردود ہو۔ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ ہمیں اپنی نمازوں پر کیوں ناز آ جاتا ہے؟ ہم کیوں کہنے لگتے ہیں سامنے والا اچھا نہیں، ہم اچھے ہیں؟ جب یہ چیز آ جائے تو سمجھ لو بربادی شروع ہو گئی۔ یہ دیکھو بنی اسرائیل کا دور ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد تھا جس نے 70 سال تک اللہ پاک کی عبادت کی۔ 70 سال کی عبادت اس کے پاس موجود ہے۔ سجدے پہ سجدہ، اللہ پاک کے لیے تلاوت، اللہ کے لیے ذکر، ویرانے میں بیٹھ کر کے وہ عابد کرتا تھا، بستی کے اندر نہیں، اس لیے کہ خضوع اور خشوع نہیں مل پاتا ہے انسان کو۔ بستی سے باہر نکل کر اللہ پاک کی عبادت 70 سال سے کر رہا ہے۔ ایک دن سوتا ہے، خواب میں الہام ہوتا ہے کہ جو فلاں موچی بستی کے اندر رہتا ہے، اللہ پاک اسے بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے، اللہ اس سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ جب اس نے اتنا سنا تو یہ حیران اور پریشان ہو گیا اور بیٹھ گیا۔ حالانکہ یہ عابد بھی اللہ والا تھا، اس کی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول تھی، لیکن ہمیں اور آپ کو دکھانا بھی تو مقصد تھا تاکہ ہمیں یہ ناز نہ ہو جائے میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں اور سامنے والا تو نمازی بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی عطا ہے کہ جسے چاہے اپنا بنا لے اور جسے چاہے اپنی بارگاہ سے مردود کر دے۔ اب یہ عابد بیدار ہوتا ہے، اب اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ چلو اس سے ملاقات کی جائے۔ جو موچی ہے، جو ظاہراً چپل گاڑتا ہے، جو کہ بہت نیچا کام ہے، لوگ عزت نہیں دیتے ہیں، حالانکہ یہ کام جائز ہے کرنا، لیکن بچنے کا بھی حکم ہے چونکہ یہ بہت چھوٹا کام ہے۔ تو اب وہ تو موچی تھا لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ قریبی ہے۔ اب یہ 70 سال کی عبادت کرنے والا عابد اٹھتا ہے اور اس سے ملاقات کے شوق میں نکل جاتا ہے۔ اب یہ جب بستی میں جاتا ہے تو چونکہ اس کے چرچے تھے، ہر کوئی جانتا تھا کہ پہاڑی میں ایک شخص ہے جو 70 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا۔ اب یہ شخص آتا ہے بستی میں اور پوچھتا ہے موچی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں جگہ اس کا گھر ہے۔ تو یہ عابد جب اس کے گھر میں گیا تو موچی دیکھ کر کے بڑا خوش ہوا، کہا حضور آپ کے دیدار کے لیے تو لوگ پریشان رہتے تھے، آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں تیرے گھر تشریف لایا اور تجھے ایک مژدہ سنانے کے لیے آیا ہوں، ایک خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا حضور کیسی خوشخبری؟ میں نہیں سمجھا۔ تو اللہ والا کہتا ہے کہ اس لیے کہ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ پاک نے میری 70 سال کی عبادت سے زیادہ اگر کسی کو عزیز تر رکھا ہے تو موچی وہ تو ہے۔ جب یہ اتنا سنتا ہے تو اس کی تو انتہا نہ رہتی ہے حیرت کی۔ یہ کہتا ہے حضور میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو وہ اللہ والے کہتے ہیں تو ہی ہے، مجھے الہام ہوا ہے۔ کہا حضور یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ پھر وہ عابد پوچھتے ہیں اللہ والے ایک بات تو بتا، میں تو 70 سال سے عبادت کر رہا ہوں، لیکن تیرا کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا قبول ہو گیا کہ میری عبادت پہ بھی تو فوقیت لے گیا، سبقت لے گیا؟ اس نے کہا حضور میں تو جو فرائض مجھ پہ ہیں وہی بامشکل ادا کرتا ہوں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں کسب حلال کھاتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں اور محنت سے جو مجھے ملتا ہے آدھا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، آدھا اپنے گھر والوں کو دے دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ میری کوئی ایسی نیکی مجھے دکھائی نہیں پڑتی ہے جس کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں، اور یہ بھی میرے رب نے مجھ پہ فرض کیا ہے کہ میں حلال کھاؤں اور حرام سے بچوں۔ آپ اس سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک کو یہی ادا اس کی پسند آتی ہو، اس لیے کہ میرا رب تو بے نیاز ہے، وہ بندے کو نوازنا چاہتا ہے تو ایک نیکی پر اتنا بڑا جنتی بنا دیتا ہے کہ انسانی ذہن و فکر میں اس کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو اللہ پاک چھپروں میں بادشاہ پیدا کر دیتا ہے، جب اللہ رب العزت لینے پہ آتا ہے تو بادشاہوں کے ہاتھ میں کٹورا تھمبا کر کے بھیک منگوا دیتا ہے، اور ہمارے سامنے کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ جب یہ سنا عابد نے تو عابد سمجھ گئے کہ یہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے تیری۔ آپ چلے گئے، پھر عبادت کرنے لگے۔ ادھر یہ جو موچی تھا یہ اپنے طریقے سے زندگی گزارنے لگا،
1-2 साल गुजरने के बाद फिर इल्हाम होता है, ऐ आबिद, पहाड़ी पर हमारी 70 साल से इबादत करने वाले तूने हमें खुश किया है। यकीनन तेरी तिलावत, तेरा जिक्र, तेरे सजदे हमारी बारगाह में एक एक कबूल है। मगर ऐ मेरे बंदे, अब जा फिर मेरे मोची से पूछ जाके उसका चेहरा पीला क्यों हो रहा है, वो कमज़ोर क्यों हो रहा है, कौन सा गम है उसे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब जानता है, मगर आबिद के ज़रिए हम लोगों तक ये बात पहुंचाना थी कि हमें भी तो पता चले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से कैसी मोहब्बत फरमाता है। अब वो अल्लाह वाले फिर पहाड़ी से उठते हैं और उठने के बाद आते हैं बस्ती में, देखते हैं मोची के चेहरा बड़ा जर्द है, चेहरे पर गमी के आसार हैं, बड़ा निढाल हो गया है, कमज़ोर हो गया है। अल्लाह वाले पूछते एक बात तो बता, तेरा चेहरा पीला क्यों है, जर्द क्यों है। तो वो कहता है हुजूर, मेरा चेहरा इसलिए जर्द है कि जब मैं सामने अपने किसी इंसान को देखता हूँ मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये अल्लाह का महबूब बंदा है, ये जन्नती है, और मैं मरदूद बंदा और जहन्नमी बंदा हूँ। कहा मेरे अंदर ये ख्याल आता है और ये ख्याल इतना घर कर गया है कि मेरे चेहरे से मेरा गम जाहिर होने लगा है, मैं कमज़ोर होने लगा हूँ और अनकरीब मुझे लगता है कि मुझे मौत भी आ जाएगी। मैं पूरा दिन काम करता हूँ, मेरा तर्ज वही है कि आधा अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ, आधा अपने घर वालों को देता हूँ। मगर ये गम जब से आया है कि हो सकता है मेरे रब ने अगर मुझे ना माफ़ किया तो मैं कहाँ जाऊँगा। इसलिए कि अगर अल्लाह पाक की रज़ा मिल गई तो सब कुछ मिल गया, और अगर अल्लाह पाक की रज़ा ना मिली, कायनात का सब कुछ मिल गया तब भी कुछ नहीं मिला है। हुसैन इब्ने अली ने ज़ाहिरन सब कुछ कुर्बान कर दिया, बच्चों को भी शहीद कर दिया है अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए, मगर उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा मिल गई तो सब कुछ मिल गया। और यजीद ने ज़ाहिरन सब कुछ पा लिया, तख़त भी पा लिया, रियाया भी पा ली, मगर अल्लाह की रज़ा को खो दिया तो उसने सब कुछ खो दिया है। तो रज़ाए मौला है तो सब है, अल्लाह की रज़ा नहीं तो कुछ नहीं है। तो वो मोची कहता हुजूर मैं क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। कहा मैं सामने वाले को नेक समझता हूं और अपने आप को बदकार समझता हूं। जब ये बात आबिद ने सुनी तो आबिद भी लर्जा बरंदाम हो गए। आपने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह का करीबी हो जाता है तो फिर वो अपने अंदर ऐब तलाश करता है, सामने वाले में ऐब नहीं ढूंढता है। फिर ये जाते हैं पहाड़ी में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मगन हो जाते, लग जाते हैं। इधर इस बंदे का इंतकाल हो जाता है तो आबिद को हातिफ़े गैबी से आवाज़ आती है, ऐ मेरे बंदे, हमने उस मोची के ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया है और जहन्नम को हराम कर दिया है। वो हमारा महबूब बंदा था, हमने उसे जन्नत अता फरमाई और जहन्नम से दूर रखा है। तो जो अल्लाह के लिए रोता है, आंसू बहाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में ही उससे दिखा देता है कि वो कितना बड़ा जन्नती है। तो हमें चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारें। हम लोग अपने कारोबार के लिए तो ज़िंदगी गुजारते ही गुजारते हैं, लेकिन अपने रब की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारें। कारोबार भी करें, इसको मना नहीं करता, लेकिन रज़ाए मौला को मुक़द्दम रखें, पहले रखें। झूठ है और सच है तो सच का साथी बने, झूठ को छोड़ दें, मदद अल्लाह करने वाला है। आज लोग कहते हैं हज़रत दुकान नहीं चलेगी अगर झूठ ना बोले। ये कितनी गलत फहमी है। क्या झूठ की बुनियाद पर दुकान चल रही? नहीं, सच्चाई का दामन पकड़ो, अल्लाह इतनी बरकत करेगा कि तुम्हारे वहमो गुमान तक में नहीं आएगी। जो अल्लाह से डरता है ना तो अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा फरमाता है, फिर उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है कि उसके दिमाग तक में नहीं होता है कि कहाँ से आ गया। एक इसकी मिसाल ये समझ लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक परिंदा है जिसका रिज़्क़ जो है वो मगरमच्छ के दांतों में रखा है। मगरमच्छ के दांतों में रिज़्क़, और एक परिंदे का, परिंदा खाना खाने जाएगा तो खुद ही मगरमच्छ का खाना बन जाएगा, मगर अल्लाह पाक ने उसका रिज़्क़ रखा है और हर दिन उसे देता है। वो कैसे? जब मगरमच्छ मछलियाँ खाता है समंदर के अंदर तो उसके दांतों में मछलियाँ लग जाती है, वो बाहर निकलता है, अपने मुंह को फैलाता है और लेट जाता है। इतने में वो परिंदा आता है, परिंदा वो मछलियाँ निकाल निकाल के खाने लगता है। अब इसे सुकून मिलता है मगरमच्छ को, जब इसे सुकून मिलता है, इसे नींद आ जाती है। वो परिंदा खाता रहता, जब उसका पेट भर जाता है और जैसे ही निकलना चाहता है मुंह से, मगरमच्छ की आंख खुल जाती है और ये जैसे ही मुंह बंद करता है परिंदा उड़ जाता है। तो ये निज़ाम कौन चला रहा है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चला रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है कि वो समंदर में मछलियों को रिज़्क़ दे रहा है, पहाड़ों पे चींटियों को रिज़्क़ दे रहा है, सुराखों में चींटियों को रिज़्क़ दे रहा है,
पहाड़ों पर रहने वाले जानवरों को रिज़्क दे रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, आपने देखा एक पत्थर बहुत चमक रहा है। आपको हैरत हुई, अल्लाह कितना खूबसूरत पत्थर है। आप उसके करीब जाते हैं, इल्हाम होता है, ऐ मूसा इससे भी हैरत वाली चीज़ दिखाएं। आपने अर्ज़ की, मौला मैं देखना चाहता हूँ। पत्थर फटता है, उसके अंदर से एक कीड़ा निकलता है और कीड़े के मुंह में हरा पत्ता होता है। हज़रत मूसा देख करके चौंक गए कि पत्थर के अंदर कीड़ा और कीड़े के मुंह में हरा पत्ता है, तो ये रिज़्क कौन दे रहा है? ये पहाड़ों के अंदर, पत्थरों के अंदर जो कीड़े उन्हें रिज़्क देने वाली ज़ात और रज़्ज़ाक़ आलम अल्लाह की है। राज़िक तो अल्लाह है, अल्लाह पर भरोसा रखें। वो हाथी को रिज़्क दे रहा है, हाथी का कौन सा कारोबार है? मछलियों का कौन सा कारोबार है? शेर तो गोश्त खाता, उसका कौन सा कारोबार है? हम थोड़ा खाने वाले कहते झूठ ना बोले तो हमारा कारोबार नहीं चलेगा। वहाँ तो अल्लाह पाक जब इतने हैवानात को रिज़्क दे रहा है तो मुझ इंसान को भी रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए रास्ते बनाता चला जाएगा। तो अल्लाह का तकवा इख्तियार करें। जब तकवा होता है तब अल्लाह की रज़ा मिलती है। कभी नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात पर गुरूर मत करना। दाढ़ी रख के बगैर दाढ़ी वाले को जलील मत समझना। आप जब उसे जलील नहीं समझेंगे तब आपकी इबादत तदरीजन तदरीजन इतनी बुलंद हो जाएगी कि आपको सब अच्छे लगने लगेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल को धो देगा, आपकी नज़रों को पाक फरमा देगा, आपके हरकत व सकनात में तब्दीली आ जाएगी। फिर आप सामने वाले में आयब नहीं निकालेंगे। अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारें। इबादत का कोई वक्त नहीं है। हज़रत इब्ने अय्यूब फरमाते हैं कि मेरा एक दोस्त था जो मुल्क शाम का रहने वाला था। वो कहता है कि मैं एक मर्तबा मुल्क शाम के सहरा की तरफ निकल गया, जहाँ कोई जाता नहीं था। कहा कि जब मैं उस जंगल की तरफ निकला, वीराने की तरफ निकला, तो मैं देखता हूँ एक बूढ़ा आदमी इबादत कर रहा है और वो इतना बूढ़ा है कि उसकी कमर झुक गई है, उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, उसकी बीनाई भी कम हो गई। कहा कि जब मैंने उस सहरा के अंदर उसे इबादत करते हुए देखा तो मैं हैरान हो गया कि हम तो बस्ती में इबादत नहीं कर रहे मगर इस जंगल वीराने के अंदर ये अल्लाह पाक को राज़ी करने में लगा हुआ है। कहा कि मैं उसके करीब गया तो वो बुजुर्ग कह रहे थे, या अल्लाह अगर तू मुझसे राज़ी नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हलाक हो गया। अगर तूने दुनिया की ही जुस्तजू में मुझे रखा तो या अल्लाह मैं बर्बाद हो गया, और अगर तूने मुझे आखिरत की तरगीब दी, जन्नत की तरगीब दी तो मैं कामयाब हो गया। कहा जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मैं भी रोने लगा, मेरे ऊपर भी अल्लाह का खौफ तारी हो गया। कहा मैं बुजुर्ग के पास जाता हूँ तो बुजुर्ग ने मुझे देखा, कहा तुम इस वीराने में कैसे हो? तो मैंने कहा हुजूर मैं गुजर रहा था, मैंने आपको देखा तो बड़ी हैरत की मैं आपके पास आया। अब मेरे दिल पर भी अल्लाह का खौफ तारी है। बुजुर्ग भी रो रहा, ये भी रो रहा। ये नौजवान कहता है आप चले बस्ती में, आप वहाँ की रानाइयाँ देखें, वहाँ के लोग देखें, लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आप इधर वीराने में कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो अल्लाह वाले फरमाते नहीं तू जा, तुझे खाना मुबारक हो, मुझे फाका मुबारक हो, तुझे आराइश मुबारक हो, मुझे तन्हाई मुबारक हो। मैं इस वीराने को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं अपने रब की इबादत करने के लिए आया हूँ। कई सालों से वो बुजुर्ग इबादत कर रहे थे, बाल भी सफ़ेद हो गए। नौजवान कहता है बुजुर्ग एक बात तो बताओ, तुम इस वीराने में ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम खाते क्या हो ज़िंदगी के लिए? तो उसने कहा कि मैं खाना बहुत कम खाता हूँ। जब भूख बहुत तेज़ी से महसूस होने लगती है, लगता है कि अब जान निकल जाएगी, गोश्त हड्डियों से जुदा हो जाएगा, मुझे मौत आ जाएगी। कहा उस वक्त मैं ये घास और पत्ते खा लेता हूँ जिसे जानवर खाते हैं। अल्लाह वालों ने ऐसी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं तो ये मकाम व मर्तबा मिला। कहा मैं इस घास और पत्तों में अपनी ज़िंदगी बसर करता हूँ। तो उस नौजवान को और हैरत हुई कि वीराने के अंदर घास और पत्ते खा खा करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं मगर अपने रब को राज़ी कर रहे हैं। नौजवान कहता है हुजूर ठीक है, मैं आपकी बारगाह से जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले जो आपकी मुलाकात का असर मेरे दिल पर हुआ है, इंशाअल्लाह मैं भी अल्लाह की रज़ा के पीछे दौड़ूंगा और दुनिया की सारी ख्वाहिशात को मिटा दूंगा। अब ये नौजवान आता है, वो अल्लाह के बुजुर्ग वहीं पर हैं। अब नौजवान की भी ज़िंदगी बदल गई।
یہ بھی اللہ والا بن گیا. اب یہ بستی سے دور ہونے لگا اور اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے لگا, اللہ کے لیے زندگی گزارنے لگا ہے. اور یہ اتنا بڑا اللہ کا ولی بنا. جب اس کا انتقال ہوا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی, اے دنیا والو سنو,